جی ہاں، میں مسلم ہوں اور میں آپ کی بات سن رہی ہوں، تو میں چاہ اچھا رہی ہوں کہ سوری میں تھوڑی سوری میں جی جی محترمہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں جی سر، میں ایک بات بتاتی ہوں. اللہ جی تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، شروع کی بھی اور آخر کی بھی. ٹھیک ہے؟ جی اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے نا، تو اسے اپنے علم کے لحاظ سے پتا ہے کہ اس شخص نے کیا کام کرنا ہے اینڈ تک. ہوں ٹھیک ہے؟ اس اچھا نے اس سے پہلے اچھائی کی. آ، محترمہ جی جی آپ یہ بتا سکتی ہے، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک فیمیل ہے لیکن آپ جڑی، اور سبجیکٹ بھی ایسا ہے کہ آپ کے طرف سے بھی اپنی بات رکھنا جو ہے اور ہمیں سننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ بتا سکتی آپ کہاں سے ہے اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، تاکہ یعنی ہمیں سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے ہم اپنا سوال آپ کے سامنے رکھ سکیں. جی ہاں، میں پاکستان سے ہوں، میں اچھا مسلم ہوں اور میرا جی کوئی فرقہ نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ مجھے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا محترمہ کہ پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے کچھ ریکویسٹ کی تھی اور میرا چینل وہاں پہ بین ہو گیا ہے. تو آپ یعنی کیسے پھر آپ جوائن ہو پائیے، کیونکہ وہاں بین ہے تو پھر وہ دکھے گا نہیں ہی نہیں، نہیں میرا بینڈ چینل. کیسے ہوا؟ میں ہاں نہیں نہیں، میں تو ایک نارمل ہوں، میں تو یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو ایک دم آپ لیکن کا آیا. تو آپ کی جو گفتگو تھی نا مجھے ہاں ہاں اچھی لگی، لیکن مجھے یہ لگا یہ کوئی صحیح مطلب یہ ہوتی نا کانسیپٹ ہوتا ہے ایک مسلم کا اور ایک ہوتا ہے کچے مسلم کا. تو مجھے یہ ہوں لگا یہ کہاں سے ہو رہا ہے، تو میں نے پھر سنتی رہی میں، تو پھر مجھے لگا یہ انڈین ہے. تو ٹھیک ہے، مسلم ایک اپنے ریجن کے حساب سے اس کا مائنڈ ہوتا ہے. ہم جس اچھا ریجن میں رہتے ہیں یا ہم نے جو پڑھا ہے، میں نے کہا نا ہوں میں مسلم ہوں لیکن میرا ہوں کوئی فرقہ نہیں ہے. یہاں تو اچھا اچھا فرقے آج بنا کے بیٹھے نا. جی اچھا کوئی مشکل نہیں محترمہ، کوئی مشکل نہیں. آپ کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ جڑی. ایک چیز تو یہ ہے کہ بین لگنے کے بعد بھی اگر وہاں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بڑا عجیب سا بین ہے یہ، لیکن خوشی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو میرا چینل اب بھی دکھ رہا ہے. اچھا مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں محترمہ. یہ آپ مائک بہت زیادہ شاید منہ کے پاس آپ نے رکھا ہے، سانسوں کی آواز آ رہی ہے، تو تھوڑا اس کا کچھ آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے. ہاں جی. دوسرا جی ہوں. دوسرا جو آج کا جو سوال ہے کہ جو مقدمہ ہم چلا رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ برائی کا پیدا کرنے والا چونکہ اللہ ہے، اگر وہ بالکل ہے. برائی پیدا ہی نہیں، ہاں اگر وہ برائی پیدا کرتا ہی نہیں تو یہ دنیا کافی اچھی ہوتی. ٹھیک ہے، نہیں نہیں، پھر دنیا ہی نہیں بنتی نا سر جی. دیکھیں جی تو کیا ضرورت ہے دنیا بنانے کی؟ ہاں میں بتاتی ہوں جی اصل میں جو بیسک چیز تھی، اللہ کو اپنی عبادت کرانا مقصود تھا. تو بنا اپنی برائی کے اللہ عبادت کے عبادت لیے نہیں کروا سکتا تھا؟ ایک پوائنٹ ٹو نہیں پوائنٹ دیکھیے. ہم چلیں گے، پوائنٹ ٹو ہاں پوائنٹ ٹھیک ہے. چلیں گے تاکہ ہاں بات زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور ایک دوسرے کا پوائنٹ بھی آ جائے. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے دنیا اس لیے بنائی تاکہ وہ اس دنیا کے ذریعے سے ہمیں اپنی عبادت کروانا چاہتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی بالکل اچھا بالکل. اچھا کیا ملا اللہ کو اپنی عبادت کروا کے، کیا ملے گا؟ دیکھیں جی بات سنیں، کیا ملا نہیں، ایک بات سنیں. اللہ کیا نے ملے گا؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں اللہ کو ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے. وہ تو اپنے کیا یہ آسمانوں فضول؟ پہ. نہیں اچھا نہیں، مجھے ظلم نہیں ہے بھائی نہیں جان. ایک منٹ نہیں ایک منٹ محترمہ، ایک منٹ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ. آپ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. عام طور پہ ہر کوئی جانتا ہے، ایک سینسیبل اگر انسان ہوگا، کہ ایسا کام کروانا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ خود ایک بیوقوفی ہے. اگر میں ایسا کام کروں جس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، اس سے مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، تو خود یہ ایک بیوقوفی والا عمل ہے میرا. تو اگر اللہ کو عبادت کروا کے کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے آپ عبادت کرو یا نہ کرو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر یہ
फिजूल की चीज अल्लाह ने क्यों फिर रखी है पूरी दुनिया, और इसमें तकलीफें, यानी आप सोचिए ना मोहतरमा कि नहीं नहीं, मैं सोच नहीं इस, रही, मेरी बात तो सुन लेना सर जी। एक जी वक्त बोलिए। था जब दुनिया नहीं थी, ओके, ठीक है ना, एक वक्त था ठीक है, दुनिया नहीं थी, आसमान था, जो फरिश्ते थे उनके अपने मामले चल रहे थे, ठीक है। ठीक है। एक दिन हम्म, अल्लाह ताला ने कहा फरिश्ते, और हमसे पहले जो थे जिन्नात थे, दुनिया ठीक में है, जिन्नात थे, ठीक ओके, है। जिन्नात बनाने का मकसद उनका ये था कि जब उन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा किया, उनसे कहा कि मैं एक मखलूक पैदा करना चाहता हूँ दुनिया के अंदर ठीक जो है, मेरी इबादत करे। तो ओके, फरिश्तों ने ठीक है। कहा कि नहीं, ये दुनिया में फसाद फैलाएगी। हाँ, मैं ना अच्छा, आपकी मालूम था इबादत अल्लाह को? करने के लिए, अल्लाह को अल्लाह को भी मालूम मालूम था, था? अल्लाह को नहीं, फरिश्तों को भी मालूम था। अच्छा, उन्होंने फरिश्तों को भी मालूम था और अल्लाह को भी मालूम था कि हाँ ये जी, फसाद फैलाएगी, ये रेप करेगी, फैलाएगी, ये हाँ कत्ल जी, बुराई करेगी नाहक। करेगी, हम उसे हाँ जी अच्छा, करेगी। आगे। क्या जरूरत है, हम है ना इबादत करने के लिए। तो अल्लाह ठीक है, ताला ने फिर? कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैं एक चीज बनाऊंगा, उनके अंदर अच्छाई और बुराई रखूंगा। क्यों? पता बुराई क्यों? सबको है। उन्होंने बुराई कहा क्यों जो, अच्छा, क्यों तो भी बुराई? दुनिया नहीं देखे जी, एक चीज होती है ना, हर चीज बना ले उसमें, हम्म, अगर हम एक स्पीकर बना ले, आपका चैनल है हम्म, ना, आपने हम्म, अच्छी नीयत से बनाया, हम्म, आपका मकसद अच्छी नीयत है कि लोगों में अच्छी चीज फैले। अब हम्म। आपके चैनल में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, आएंगे कि नहीं 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 आएंगे? नहीं, मैं इसको इस तरीके से आपको जवाब दूंगा। आप इस तरीके से बोल सकती है कि आपने चैनल बनाया, ठीक है। हम्म अब हो सकता है इससे कुछ लोग जो है वो इससे सही इल्म हासिल करे, अच्छा काम करे। हो सकता है कि इससे लोग जो है आपको गलत तरीके से ले, और यानी एक एग्जाम्पल जो मेरे ऊपर इल्जाम लगता है उसी को मैं ले लेता हूँ, हालांकि ये इल्जाम है कि हो सकता है कि जो लोग हैं, जैसा अगर इंडिया में है मेजोरिटी, अगर हमको हिंदू सुन रहे हैं, और उनके अंदर हो सकता है कि हेट की भावना आ जाए और वो जाके मुसलमानों का नुकसान करने लगे, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मेरे इख्तियार में होगा कि मेरे इस चैनल से सिर्फ और सिर्फ फायदा ही हो लोगों का, तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे चैनल से कोई इसका गलत मतलब भी ले सके, नुकसान कुछ कर सके, अगर मेरे इख्तियार में होगा। अगर मेरे देखिए सर, इख्तियार में हो, मैं एक ना, मिनट मिनट मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, अगर मेरे इख्तियार में होने के बावजूद भी अगर मैं ऐसा होने दूं, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी ये मुझ पे भी आती है। मैं भी उस पूरा जिम्मेदार हूं, जितना अगर कोई मेरी स्ट्रीम सुन के अगर गलत काम करेगा वो जितना जिम्मेदार है, उतना जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि मेरे पास इख्तियार होने के हेलो, बावजूद मैंने इसको नहीं रोका। मॉडर्न मुस्लिम जी, आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये जो मुझसे मोहतरमा बात है करें। उनसे मेरी बात कंप्लीट हो जाए। अच्छा सर, एक एक मुझे बताएं, आप मेरे मुझे काटिएगा मेरा नहीं, मैं एग्जाम्पल आराम आप से समझा बात आपको? करूंगी। हाँ 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 जी, बिल्कुल, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, आप 1 घंटा मुझे बात करिए, ये कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ आपके बारे में, आप कौन हैं? मतलब आप, मैं मुस्लिम हूँ ना, नहीं, मैं एक्स आप मुस्लिम मैं हूँ, मैंने इस्लाम आप छोड़ दिया। मुस्लिम हैं, आपने मैंने इस्लाम छोड़ इस्लाम दिया? छोड़, जी। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है ठीक है, आप समझ में आ गई ना मुझे, क्योंकि आप पहले मुस्लिम थे, आपको जी। समझ में नहीं आई, फिर आप हम्म। नॉन मुस्लिम हो गए, ठीक है। जी। आपके जो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी तो देखें, मुस्लिम मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे मेरे हम्म, पेरेंट्स मुस्लिम थे, मेरी ठीक है। तरबियत हुई है, मैंने पढ़ा है, ठीक ओके। है ना। मैंने एक आम, मैं मौलवी नहीं, मुफ्ती नहीं, कोई अगर मेरे साथ मौलवी मुफ्ती भी बैठ जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं आपकी बात से ज्यादा मैं वो बात एक्सेप्ट करूंगी जो मैंने कुरान में पढ़ा है, हम्म, सही है ना। मैं ठीक है, अब ये मैं हो गया। कुरान पढ़ती हूँ, ठीक है ना। मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैंने हम्म, पढ़ा, खुद को पढ़ा, मैंने या इल्म कुरान से लिया, हदीस पढ़ी, और मैं अपनी बात रखती हूँ, तो फिर आज भी मुस्लिम रही, पढ़ के भी। आपका नॉन मुस्लिम हो जाना ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे प्लीज ये बता दें कि आपके फादर मदर क्या थे? जाहिर सी बात है, मुस्लिम थे तभी मैं मुस्लिम हुआ हूं ना, यानी मैं तो पैदाइश से ही मुस्लिम हूं मैं।
तो इतनी चेंजिंग कैसे आई आपने क्या? मैं तो क्रिश्चियन में भी रही हूँ, मैं चर्च में भी गई हूँ। आप एक काम मुझे कर सकते, मोहतरमा आप एक काम कर सकती है, इस चैनल पर मेरी एक वीडियो है, वाई आई लेफ्ट इस्लाम, आप वो देख हम्म सकती है। उसमें आपको तफसीलन पता चलेगा कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा है। और उसके अलावा कई सारे टॉपिक्स जो मुझे इस्लाम की जो बातें हैं जिसमें मुझे एतराज़ लगता है, उन पे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की है। आप वो देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा है। और बहुत उम्मीद है कि अगर आप देखेंगी तो हो सकता है, और आप एक वाकई में अगर एक अच्छी इंसान होंगी आप, या आपकी सोच अगर उतनी अच्छी होगी, लॉजिकल होगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान होगा जो वो सवालात को देखने के बाद वो इस्लाम में रहे। खैर वो एक आगे की बात है। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि हम्म आपने ये कहा ना मेरे ऊपर, आपने ये कहा कि हो सकता है आपकी बात सुन के कोई गलत मतलब भी निकाले। तो उसका जवाब मैंने इस तरीके से दिया था कि अगर मेरे इख्तियार में होगा तो मैं ऐसे होने ही नहीं दूंगा कि कोई मेरी बातों से गलत मतलब निकाले और गलत काम करे, वरना मैं खुद भी उसका जिम्मेदार हूं मेरे पास इख्तियार होने के बाद। अच्छा चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। ये देखिए, ये देखिए, दो एग्जांपल है, एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ, आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करना है? शेरियार। शेरयार। शेरयार, थोड़ा मैं स्पेलिंग ऐसे रख देता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? पता नहीं कहाँ आ रहा है, मैं तो आंख बंद करके सुन रही हूँ। अरे आंख, यही प्रॉब्लम है ना कि हम आंख बंद कर लेते, अगर आंख खोल दे तो मसला ही खत्म हो जाए। नहीं नहीं, अब आप, आपकी बातों पे ना मैं तवज्जो दे रही हूँ, मैं स्क्रीन पे अच्छा, तवज्जो नहीं दे रही हूँ। मैं नहीं स्क्रीन चाहती पे हूँ देख कि, लीजिए ना, स्क्रीन पे देख अच्छा लीजिए देखिए, मैं कि, एक बात बताती हूँ, मुझे एक बात बताएं आप, मैं आपसे सवाल करती हूँ। ठीक है एक करिए। चीज है, जब उसको पता है, फरिश्ते भी कह रहे हैं मत पैदा करो, ये फसाद फैलाएगी, कत्ल करेगी, हम है ना आपकी आप इबादत अल्लाह की करने के जगह लिए। पे, अच्छा शेरियार जी, एकदम सिंपल कर हाँ, देता हूं मैं। आप अगर अल्लाह की जगह पे होती, आप क्या करती अगर आपको मालूम होता कि ये जो बंदा है जिसको मैं बना रहा हूं, ये मासूम बच्चों के लिए रेप करेगा जाके? आपको पता है वो कि ये, देखिए एक नहीं, मिनट मेरा सवाल तो कंप्लीट कर लूं, मैं सवाल आप तो तो कंप्लीट नहीं, कर लूं। मैं ना, मुझे पता है, मैं बता तो रही हूँ कि अल्लाह ने सब बनाया। अल्लाह को अपने इल्म से फर्क पता चल गया कि ये शख्स अच्छा है, ये शख्स बुरा है। आप एक बात, मैंने मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप अल्लाह की जगह पे होती और आपको पता होता कि ये बंदा जो है ये रेप करने वाला है, आप उस बंदे को बनाती या नहीं बनाती? आप अगर होती, शेरयार होती अगर वहां पे, आप क्या तो करती? मैं, हाँ तो मैंने अक्ल डाली है ना। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, अरे यार, आप मैं सुने तो, अकल की बात नहीं, एक मिनट, मैं अकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई आप सुने शेर, तो सही ना, आपने मेरी एक पॉइंट बात तो फिक्स कर सुनिए। लिया। एक, नहीं, आपने जवाब नहीं दिया है। मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि आप क्या करती, क्या आप भी उस इंसान को बनाती जो रेप करने वाला है? तो जाहिर है जब मैंने उसको अकल दी है, एक बात से नहीं, नहीं, मैंने अच्छा, आप सुन नहीं आप, रहे ना, आपने एक चीज फिक्स करी हुई है कि जी नहीं, मुझे अच्छा तो मैं, यहाँ पे पहुंचना है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मैं एक होता आपको नहीं, मौका सुनिए देता सुनिए, हूँ अभी, मैं मौका नहीं दे नहीं, रहा हूँ, मैं तो मेरा आपको सवाल फिर मौका से देती हूँ, सुनिए। मुझे अच्छा बोलिए, मुझे आप बोलिए। काटना नहीं है, मैं नहीं मौलवी बोलिए। नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं, बहुत अच्छा जवाब दे के जाऊंगी इंशाल्लाह, अगर आप मुझे चलिए, रखेंगे, काटेंगे नहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, चलिए बताइए। देखिए मैं एक बात बता रही, जब मुझे पता है, नौज बिल्ला, अगर मैं अल्लाह हूँ, ठीक है, नौज बिल्ला, अगर मुझे, मैंने एक चीज बनाई है ना, मैंने, इंसान हाँ, में और फरिश्तों में क्या फर्क है? पहला सवाल ये बताएं। फरिश्तों में अकल नहीं है, वो हम्म, रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो अल्लाह कहेगा वो वही करेंगे, वो इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, अल्लाह ने इंसान को बनाया, उसमें अच्छे बुरे इंसान भी पैदा किए, लेकिन एक अक्ल का मियार रखा।
کہ جی یہ عقل ہے, میں نے جنت دوزخ بنائی ہے اور ساتھ میں عقل بھی دے دی ہے, اچھائی برائی بھی پیدا کری ہے, عقل بھی دے دی ہے. اب انسان کو چھوڑ دیا, جاؤ زمین پہ جاؤ کرو, جو اچھا کام کرے گا اسے جنت ملے گی, جو اچھا کام نہیں کرے گا اسے دوزخ ملے گی. تو پھر میں اگر اوپر سے اچھا دیکھ رہی ہوں, اچھا دیکھیں نا ٹھیک ہے, آپ میرے کی اندر بات آ گئی. ممتا بھی ہے, میں نہیں اچھا ساحل بھائی ہوں. میں ممتا بھی کچھ ہے. پوچھوں؟ ہاں طاہر بھائی آپ ہاں پوچھیے, جی, پھر میں ایک سوال ان سے کروں گا. جی طاہر بھائی. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں شہریار میم سے پوچھے. کہ میم ابھی آپ نے کہا کہ فرشتے جو ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے, وہ کچھ عقل سے ڈیسیزن نہیں لیتے ہیں, تو پھر فرشتوں نے یہ عقل کیسے لگایا تھا کہ یہ انسان نیچے جا کر کے جو ہے فساد کریں گے؟ ان کو کیسے پتا چلا تھا یہ ساری باتیں؟ ہاں جی, بالکل 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 بالکل. ہم سے پہلے جو ہے نا جنات رہتے تھے, اللہ نے ایک مخلوق بنا دی تھی, اس نے فساد کیا, اس نے گناہ کیے زمین پہ, ٹھیک ہے. جب یہ جو شیطان ہے نا, یہ اسی قسم کی ایک قسم ہے, ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چاہا کہ میں اب انسان بناؤں, یعنی کہ جنات نہیں اب انسان بناؤ, تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فساد کریں گے, کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا, کہ میری مرضی میں جو چاہے کروں, میں بناؤں گا, لیکن میں جنت دوزخ بھی ہے, جو اچھا کام کرے گا ادھر جائے گا, جو نہیں کرے گا ادھر جائے گا. یہ وہی نا بات ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ پوری. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایمی بنا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے, سر نے پڑھا نہیں سب کچھ, سمجھ میں آئی نا. یہ جو آپ پڑھو گے نا, دنیا سے پہلے کیا ڈسکشن ہو رہی تھی فرشتوں کی, ان کی, تو پھر انسان تو نہیں پھر تو مانتا ہے کیا آپ چیز ہے. آپ آپ نے ابھی کہا نا کہ فرشتوں نے یہ بات کہی جناتوں کو دیکھ کر کے, تو جنات تو الگ مخلوق تھے نا, انسان تو الگ ہیں, دونوں تو الگ الگ مخلوق ہیں. تو فرشتوں نے یہ انسان کو دیکھ کر کے کیسے گیس کر دیا کہ وہ بھی فساد کریں گے جا کے دنیا میں؟ دیکھے جی, یہ تو تھا نا, یہ تو انہوں نے جنات کو اب میں فرض کر لے ساری اگر قیامت آئے گی, ہم ختم ہو جائیں گے نا, تو کیا سمجھے دنیا ختم ہوگی تو اللہ اپنی دنیا اور بھی بنا سکتا ہے. اب انسان پہلے جنات بنائے, اب انسان بنائے, پھر کوئی اور مخلوق بنے گی, تو کیا اللہ کو نہیں تو پتا اس کا مطلب کیا فرشتوں کو؟ یہ کہ تو فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم تھا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, وہ بھی غیب کا کیونکہ علم رکھتے تھے. اتنی رکھتے تھے جتنی کہ اللہ نے عقل دی, یعنی کہ اگر جنات کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا نا, ان کے کام دیکھے ہوئے تھے, یا اب اچھا انسان ہوگی, یہاں اچھا تک کی عقل تو ہوگی نا ان کے پاس. اب شیر آنے والی کی عقل تو اللہ کو پتا ہے نا. شیریار جی, آپ کو یہ جی پتا جی, ہے کہ آپ کی عقل آدھی ہے, آپ کم عقل ہے, بال- یہ آپ کو پتا ہے؟ سوری آئی ایم بالکل سوری, بالکل میں بالکل, آپ نہیں کو. نہیں نہیں نہیں, انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم نہیں اتنا مطلب, سوچ سکے جسے اللہ کو نہیں علم ہے. نہیں, ہاں انسان جی بالکل, انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہاں ہاں مردوں اور عورتوں میں آپ کم عقل ہے ایسا اللہ کے نبی بول کے گئے, بالکل آپ بالکل مانتی ہے اپنے آپ بالکل, کو کم عقل؟ آپ اپنے ہاں آپ کو جی کم عقل بالکل مانتی ہے؟ بالکل. مردوں کی تو کیونکہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں, نہیں, ٹھیک ہے آپ نا, اپنے آپ اور کو کم عقل مانتی ہے مطلب؟ ہاں جی بالکل مانتی ہوں. چلیے کوئی نہیں, ارے اس پہ تو بحث نہیں ہے. گھر میں رہنے والی میں عقل نہیں ہوتی کیا؟ نہیں نہیں, دیکھیے میم ہوتی ہے, یہ کیا آپ بات کر رہے ہو. تو پھر لیکن دیکھیے نا, میں ایک آدمی کے مقابلے میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں سارا علم رکھتی ہوں دنیا کا. دیکھیے نا, مولوی کے آگے میرا یا سر کے سامنے میرا علم پورا تو نہیں ہوگا نا. یہ اچھا تو آپ کی نہیں, ڈاکٹر علم کی صاحب, بات نہیں ہوئی نا یہاں, علم کی بات نہیں ہوئی یہاں, عقل کی بات ہوئی ہے. عقل علم سے آتی ہے بھائی جان. اگر ایک نہیں بندہ نہیں مطلب, آپ جسے گھر سے باہر ہی نہ نہیں دکھایا نہیں گیا نہیں ہو کوئی سین, دیکھیے ایک ایک منٹ بچہ ایک گھر منٹ, میں رہ رہا ہے. آمنہ آپ جی ایک ایک منٹ مرد ایک منٹ, ایک منٹ, مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے, سوری. شیریار جی, مطلب جی جو 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 فیمیل سائنٹسٹ ہے اور یعنی ڈاکٹر ہے, اس کی عقل مولوی سے زیادہ یا کم ہے؟ اپنی اپنی فیلڈ میں. دیکھیں میں ہر چیز کی ماہر نہیں ہوں, اگر میں وہ سائنٹسٹ ہے تو اس کی عقل اپنی فیلڈ میں زیادہ ہے. کس سے؟ اگر مرد سے؟ مولوی ہے تو وہ مرد اپنی سے. فیلڈ میں زیادہ ہے. اچھا وہ اچھا نہیں جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے اچھا, نا ایک آل منٹ, راؤنڈر,
अरे रुको शेरियार जी, एक मिनट। यानी आपने ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि औरतों की अकल कम हो, बिल्कुल। लेकिन नबी पाक तो कहते हैं औरतों की अकल कम है, बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे दिया नबी पाक ने, औरतों की अकल कम है। उन्होंने टोटली बात की होगी, आप लेकिन नबियों टोटली को नहीं है ना देखिए। ऐसा। नहीं देखिए, और ये बात सर, मैं एक बात बता दूं, जी, मैं चर्च भी गई हूँ, मैंने वहां पे बड़े प्यार नहीं उससे मोहब्बत फर्क नहीं पड़ता। नहीं, चर्च जाने या ना जाने से इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ये समझ है, ये होता है कि उनकी बातों ने आप पे इफेक्ट नहीं किया, आप वही रहे जो थे आप, ठीक है ना। ये हो सकता है कि आपने आप जो बातें कर एक रहे हैं मिनट ना। एक मिनट शेरियार जी, एक मिनट। जी सुनाइए। अभी आपने कहा था कि औरतों की अकल कम है ना? औरतों की अकल नाकिस होती है ना, कम कम है, अकल होती है ना। वो उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। देखिए हम अभी कैसे हमारी नहीं कहा बात है था? ना। नहीं, सुने एक सुने, मिनट, मैं अब दलील दे खुल के देता मैं हूँ। बोल देती हूँ, अब मैं खुल के बोल देती हूँ। देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, अगर एक कमरे में बैठे होते हैं तब भी ये ऐसी बात नहीं करते। अब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। उन्होंने इस फहम में कहा था हम्म कि औरत जो होती है ना, मैं देखिए करनी नहीं चाहिए मेंसेस होते हैं ना औरत को हम्म तो उससे महीने अकल में, कम हो जाती है। अकल कम नहीं हो जाती हाँ, उसमें। फिर मैं सुने ना, अब आप हंसे नहीं, फिर मैं भी हंसू आपकी बात पे। नहीं औरत ठीक सही है, हम चल लोग रही होती है ना, सीरियस 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 ले रही, जो डिस्कशन। हंस रही है ना, हाँ, फिर ये बात नहीं गलत है। मैं भी आपकी बात पे हंसने लगूं तो ये मजाक हुआ। नहीं हम असल सीरियस में बात। नहीं, असल में हम पूरी संजीदगी रखना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि कभी कभी बातें आप लोग इस तरीके की कह देते हैं ना कि नहीं चाहते हुए भी इंसान को हंसी आ जाती है। आपने अकल तो को मैं भी जोड़ हंसने दिया लगी। मेंसेस के साथ। नहीं, आप हंसिए, नहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन ओहो, मेंसेस के साथ, देखिए मेंसेस के मैं बारे एक में बात, क्यों कहा आपने? मैं कहना नहीं चाहती थी। देखिए, हर इंसान अच्छा काम, मैं जैसे हूँ, मैं हर काम अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन जिन दिनों हम्म ये खास दिन होते हैं ना, हम्म मैं, मैं, आवाज ब्रेक हो रही है शायद इनकी। ताहिर भाई कंफर्म करिए, आवाज ब्रेक हो रही है क्या इनकी? मुझे क्या मेरे मेरे उलझन वॉइस में होती प्रॉब्लम है? आ- आवाज ब्रेक हो रही है, इनकी आवाज है, ब्रेक हो रही है। मुझसे बैठा नहीं जाता, आपकी आवाज ठीक है ना। मैं ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, शेरियार जी। सकती, समझ आइए ना शेर बात। तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही आज है। दिनों औरत सही काम, हाँ जी, अब तो नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आवाज। शेरियार जी, थोड़ा आप अब मैं इसके लिए वाईफाई, क्या देखिए कर अल्लाह सकती हूँ। साथ नहीं दे रहा है, आज क्योंकि आप जो है, आप अपने की आप को आ रही कम है। अकल साबित करने की कोशिश कर रही हैं, तो अल्लाह साथ नहीं दे रहा। इंटरनेट भी नाराज हो गया है कि यार इस जमाने में भी अगर लोग ये कहे कि औरत कम अकल होती है और खुद उसको साबित भी करने की कोशिश करे अकल लगाकर, नहीं नहीं, तो थोड़ा सा बहुत ही ताज्जुब की कॉन्ट्राडिक्शन हो बात है जाता ये, बहुत ही। है। जी, आपका साहिल कनेक्शन भाई, सही हो गया है? हाँ ताहिर भाई, कुछ बोलिए आप। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि खुद ही को आदमी कमअकल साबित नहीं, करे। बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। इंटरनेट भी तो नहीं, इंटरनेट नाराज हो गया आपसे। हम्म यानी ये देखिए कि ये खुद को कम अकल साबित करने के लिए कितनी अकल लगाकर ये एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रही है। वही तो, मतलब हद हद हो जाता है ब्रेन वॉशिंग में। ये क्लिप मैं अलग से क्रॉप करके लगाऊंगा। और मेंसेस से क्या, अकल का और मेंसेस से क्या लेना देना, मेरे को ये आज अभी नहीं समझ में आया। एडम का सो तो नहीं गया भाई तू? क्या वो म्यूट करके एडम हंस तो नहीं रहा है ये?
आज 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 हंसने वाला दिन है साहिल। नहीं, हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि आप देखिए कि आप इस्लाम को मानकर आप क्या हो जाते हो, आपका दिमाग देखिए कैसे चलने लगता है। अच्छा, मैं चलो लाइन टू लाइन, दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 1500 लोग देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। ताहिर भाई आप भी दीजिएगा, आमना जी आप भी दीजिएगा, और समीर भाई आप भी दीजिएगा। ताहिर भाई आपसे सवाल है, और जितने लोग देख रहे हैं वो कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। ताहिर भाई जी अगर आपको मालूम है कि ये बंदा जिसको मैं बनाने वाला हूं वो रेप करने वाला है, ठीक है, आप उस बंदे को बनाओगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे साहिल भाई, कोई सेंस नहीं बनता है कि अगर मेरे सलाहियत में है कि मैं ऐसी चीज को बनाऊं जो बुराई कर सके, और मेरे को पता है कि ये आगे जाकर के बुराई करेगा, तो मैं कभी भी ऐसी चीज को नहीं बनाऊंगा अगर मैं मोरल हूं तो। अच्छा, गुड। लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अल्लाह की जगह पे होते, और सेम सवाल मैं उनसे कर रहा था लेकिन उनको समझ में नहीं आया, अगर आप लोग अल्लाह की जगह पे होते तो क्या आप एक ऐसे इंसान को बनाते जो एक छोटी बच्ची का रेप करने वाला है और आपके इख्तियार में है वो, कि आप चाहे तो उसको नहीं बना सकते, तो क्या आप बनाते? एक क्या होता है मालूम है ताहिर भाई, कि जैसे जी दुनिया का मामला है, आप एक चीज बना देते लेकिन वो आपके इख्तियार में नहीं होता है कि उसको रोक सके, हम्म तो वो तो एक अलग मसला है, उसमें तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती फिर। लेकिन आपके इख्तियार में भी है कि एक तो ये चीज कि अगर मेरे अंदर ये सलाहियत है कि वो बंदे को मैं ऐसा बनाऊं जो रेप करेगा ही नहीं, तो मैं तो उसको ऐसा हम्म बनाऊंगा कि उसके अंदर ये रेप करने वाली जो फीलिंग है ना, वो ही मैं डालूं। सही बात है, बिल्कुल उसका उल्टा है जो भी हदीस में एडम ने दिखाया हमें। ये तो उल्टा है हाँ मामला, कि हम ऐसी फीलिंग डाल के बना रहे हैं ताकि वो करे। हाँ, और फिर माफी मांगे, बताइए। यानी माफी मंगवाने हाँ का इतना शौक है अल्लाह को कि उसके वजह से वो दुनिया में फसाद चाह रहा है। बताइए। साहिल भाई, और हाँ, समीर हाँ भाई से भी मेरा सवाल है, जो मैंने सवाल किया उसका पहले जवाब दे दे आप। जी असल में मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ताहिर भाई बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आप भी नहीं बनाएंगे, इसीलिए तो हम लोग अल्लाह नहीं है। ओ हो। यानी यानी समीर भाई, अच्छा, अल्लाह होने के लिए जरूरी है कि हम दोनों तरह की चीजों को बनाएं। अल्लाह होने के लिए ये जरूरी है कि तुम सारी अक्ल के खिलाफ बात करो, जो लोगों की अक्ल में नहीं आए, तभी मैं मानता हूँ। सही। अब देखिए ना, वो मोहतरमा जो आई थी शेरिया जी, वो कहती है कि मैं कम अकल हूँ, और वो साबित करने के लिए इतनी अकल देती दलीलें दे रही है कि औरतों में मेंसेस होता है। तो यार, अपने आप को कम अकल कोई नहीं समझ। आज आज का स्ट्रीम बड़ा मजेदार रहा है साहिल भाई। तीन तीन मैं लोग आए हैं अब तक इस मौजू पे, इस सवाल पे, इस मुकदमे पे 3 लोग आए हैं अब तक, और तीनों का जवाब जो था वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ और भी मोमिन हजरात जुड़े हैं, देखते हैं कि कोई तो ऐसा आ जाए यार जो अकल वाली बात करे। चलिए, ये मॉडरेट मुस्लिम जी शायद ड्रॉप हो चुके हैं, मॉडर्न मुस्लिम। हम्म मुझे उनसे सबसे पहला सवाल ये करना था कि आपको ये जरूरत क्या लगी जो अपने साथ ये वर्ड लगाए, मॉडर्न मुस्लिम। हम्म। चलिए, एक मुस्लिम 009 है। जी मुस्लिम साहब, कैसे हैं आप? इस्तकबाल है आपका। सर, आपके इंटरनेट में इशू है कुछ, थोड़ा नेटवर्क पे आ जाइए आप। नहीं, गिटार गिटार बज रहा है।
कनेक्टिविटी का इश्यू है इनके साथ में कुछ। हाँ, कनेक्टिविटी इशू है। अच्छा साहिल भाई, इनका नेट वापस आए तब तक मैं एक चीज कहना चाहता हूँ लास्ट कॉलर के बारे में। जी जी, आप बोलिए। साहिल भाई सुन सकते हैं मुझे आप? ये कौन मुस्लिम साहब कह रहे हैं आप? जी जी जी, अच्छा, 009। हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है। 1 मिनट रुकिएगा, समीर भाई को एक पॉइंट अपना रखना है, तो जी जी उसके बाद बोलिए। फिर मैं आपको मौका देता हूँ। और उससे पहले एक मैं सुपर चैट ले लूँ। अल्लाह की इबादत करने वाली मोमिना के साथ एक मोमिन जबरदस्ती करता है, तो अल्लाह मोमिना के साथ कैसे इंसाफ करेगा और मोमिन के साथ क्या करेगा? नहीं, वो माफी मांग लेगा, क्योंकि अल्लाह को माफी मंगवाने का बहुत शौक है, तो माफी मांग लेगा तो फिर वो माफ कर देगा अल्लाह। दोनों खुश, मोमिना भी खुश, मोमिन भी खुश, क्योंकि अल्लाह खुश हो गया माफी मांगने से। तो ठीक है समीर भाई, और इसमें कुछ ऐड करना? सॉरी समीर भाई, आप अपना पॉइंट रखो, फिर हम मुस्लिम भाई से बात करते हैं। जी मैं ये कह रहा था कि जो हमारी मोहतरमा हमारी बहन आई थी पाकिस्तान से, जो जुड़ी थी लास्ट कॉलर, उनके ख्याल आपने सुने और सभी लोगों ने कहा कि भाई वो अपने आप को कम अकल भी कह रही हैं, सब चीजें जो अपनी जगह थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने वाकई जो है तालीम हासिल की है, उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई वाकई की है, क्योंकि वो जो बात कह रही है ना, असल में वही अल्लाह अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है वही चीज कहता है कि औरतों को जो है मेंस्ट्रुएशन आते हैं इसलिए वो जहन्नम में जाएंगी, औरतें लान तान बहुत करती हैं, औरतें जो है ना ये सब चीज़ें करती हैं, तो वो सारी चीज़ें कम अकल होती हैं। तो ये हदीस जो आपने उस दिन बात की थी, इस हदीस के ऊपर हमने भी की थी, उसमें ये चीज़ एक्चुअली है जो उन्होंने कोट की। तो इससे मुझे ये मालूम चलता है कि उन्होंने खैर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। नहीं 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 और नहीं 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 नहीं, वो जी असल में समीर भाई वो दो अलग चीज है। मेंसेस के ऊपर जो है वो अकल को नहीं जोड़ा है मोहम्मद साहब ने। मेंसेस के ऊपर कम क्या कहते हो, दीन में दीन में कमजोरी, भी, दीन दीन में में कम है। कमजोरी हाँ को जोड़ा है, वो मुझे मालूम है। लेकिन मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि वो एक ही चीज, एक ही हदीस के अंदर एक साथ दोनों चीज आई हैं। दोनों चीज है। हाँ हाँ, एक ही हदीस के अंदर ना, तो उन्होंने वो कोट किया और जिस तरीके की वो जवाबात दे रहे थे, वो जवाबात से मालूम चलता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत तो खैर इस्लाम को पढ़ा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाकी जो मोमिन आते हैं हमारे, जो कि अच्छा, असल में एक बात इसमें और ऐड कर दूं समीर भाई, कि वो थोड़ी देर पहले उन्होंने शेरियार जी ने ये भी कहा था कि मैं मौलवी से अच्छी बात अच्छा जवाब दूंगी, ऐसा भी इस तरीके भी कुछ बातें उन्होंने कही थी। यानी खुद वो अपने आप को मौलवी से ज्यादा अकल वाली मान रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा ना ये बात। हो सकता है, हो सकता है, ये उनका अपना मौक़िफ़ है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि बाकी मोमिन जो हमारे साथ कॉल आते हैं ना, कॉल के ऊपर, स्ट्रीम के ऊपर जुड़ते हैं, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाया करें, ताकि कम से कम जो बेस लेवल की चीजें हैं वो हमें आपको डीपली बार बार बोल के समझानी ना पड़े, उतना तो आपको पता होना चाहिए।